AB, slope from 2 points. पहले ये फॉर्मूला बताओ क्या होगा. Slope from 2 points. क्या होता है बेटा जब 2 पॉइंट होते हैं तो फॉर्मूला स्लोप का. एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? y2 minus y1 upon x2 minus x1. right. So this formula we have to use. So first, slope of AB, let it be m1. स्लोप ऑफ AB को मैंने नाम दे दिया m1, राइट. सो बताओ मुझे क्या आएगा बेटा. दिस इज A, दिस इज B, x1 y1, x2 y2. तो मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आएगी वैल्यू. 5 minus 4 1 upon 3 minus 4 minus 1. So it is minus 1. m1 is minus 1. Slope 1 is minus 1. Right? Now, slope BC, इसका नाम ले लिया आपने m2 सपोज. तो now x1 y1, x2 y2. तो minus 1 minus 5 divided by minus 1 minus 3. It is minus 6 by minus 4. सॉल्व करने पे 3 by 2. So m2 is equal to 3 by 2. Value of m2 is 3 by 2. Now slope number 3. Slope AC. AC का नाम दे दिया हमने m3. चलो minus 1 minus 4 divided by minus 1 minus 4. सॉल्व करने पे 1 आ रहा है. Now m3 equal to 1. Now on the basis of slope, how we can say that the triangle is a right angle triangle? What we need to see beta here? क्या चेक करना है बेटा? वानी बोलो. m1 into m3. सर उनका प्रोडक्ट -1 आएगा. किसी दो स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1. तो यस, तो यहाँ लिखेंगे since m1 into m2 equal to -1. Sorry, m2 नहीं, m3. Since slope 1 into slope 3 is equal to -1. Therefore, triangle ABC is a right angle triangle. Right, beta? Is this clear to all of you, beta? Online? Is this clear to all of you, beta? Yes, sir. I'm taking next question number 7. Should I rub this beta? Online beta? Should I rub this beta? Yes, sir. Now question number 7. Read this question carefully, beta. I'm reading this question for you. Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. This is my 2D plane, beta. This is the line which is making a 30 degree with the positive direction of y-axis. Right? 30 degree. This is 30 degree. Right? Now, what is the definition of slope? Slope की definition क्या बताई थी? A line making an angle theta with the positive direction of y-axis. x-axis. X-axis. तो X-axis. मुझे
पहले ये पता होना चाहिए, तभी मैं आपका स्लोप निकाल सकता हूँ। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा तब तक मैं नहीं निकाल सकता। तो आप मुझे बताओ, इफ दिस इज 30 डिग्री देन व्हाट इज दिस एंगल? So the second angle will be 120 degree. 120? Yes, sir. Sir, 120 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन है हाउ एंड व्हाई 120 डिग्री? आर्यन पहले आप क्लियर करोगे बेटा। Sir, because Follow because due to vertically opposite angles, it will This be is what? sir, 30 This degree. angle is what? 30 30 degree. degree. And this is what beta? 90 90 degree. So you have a property related to this. क्या होता है बेटा? Property बताओ पहले. What is the name of this property? Angle sum property. Angle sum Sir, property. exterior angle. हाँ पूरा बोलो, Exterior statement बोलो angle. बेटा. Exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles, right beta? So Yeah. this is 90, this is 30. 90 plus 30 is 120. Very good. आप लोगों को सबको याद है ये चीज। मेरे ख्याल से कब पढ़ी आपने? 9th में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है वाली प्रॉपर्टी? 8th में पढ़ी है, 9th में पढ़ी है? Sir, 8th. हाँ 8th में। इतने पर देखो 2 साल की चीजें याद है, इसका मतलब है आपने इस चीज को समझा था, तभी याद है, अदरवाइज नहीं रहती याद। ठीक है, चलिए। नाउ इट इज 120। तो पहले हमने क्या बाय डेफिनेशन we have reached to the angle which is required according to the definition of slope, right बेटा? तो अब मेरे पास क्या हो गया, इसका स्लोप इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा इज tan थीटा, थीटा की वैल्यू 120। ठीक है बेटा, किसी का माइक ऑन है, ऑफ म्यूट करो बेटा। चलिए, नाउ m इक्वल टू tan 120, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 120। वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टर्म में नहीं है, लेकिन वी हैव डन टिल सेकंड एक्सरसाइज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री एंड वी हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड हियर, right? So what we have to write to get the value of 120? We can write 90 plus 30, right? Now tan 90 plus theta is what? Now identity is tan 90 plus theta is equal to what? Cot theta. बोलो भाई कोई और? yes, sir. Is it cot theta or minus cot theta? Sir, minus cot theta. Yes, अब सही बोला आपने, right? So now this is minus cot 30 degree. Now what is the value of cot 30? √3. Sir, minus. Answer is √3. minus √3. This is the answer, right? देखो स्लोप में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने आप फ्रेम करो या बुक में ढूंढो, आपको ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपने क्या किया इसमें, डेफिनेशन को अंडरस्टूड किया आपने, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज अलोंग द एक्स एक्सिस है मेरे पास विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस, बट इन्होंने जान। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर अगर हम इसमें एज्यूम कर लेते कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तब वो 30 हो जाता और 90 मानकर डायरेक्ट 120 भी कर सकते थे ना? हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। ये आपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाई है बेटा, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम बेटा? सर हिमांशु। हिमांशु, गुड बेटा गुड। दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव अप्रोच बेटा, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। दिस विल हेल्प यू इन कॉम्पिटिटिव लेवल बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढना बेटा बुक्स में, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं एनसी, क्योंकि देखो आप सबको कहीं ना कहीं जेई एक बार अपीयर कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आरडी वगैरह में मिल जाते हैं, या फिर आपकी अरियन की बुक आती है उसमें मिलेंगे, तो ट्राई करना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। इन 8th क्वेश्चन हिमांशु ने ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताई, वो कैसे है? वो बेटा उसने कहा कि मैं इसको ओरिजिन से पास कर दूं, ओरिजिन से ले लेता हूं, तो ये 90 है, तो 90 के बाद 90 प्लस 30 120 हो जाता है ना बेटा। अगर इस लाइन से को डायरेक्ट निकल जाता ले है। लिया तो 90 प्लस 30 120 हो गया। मतलब दिस इज क्या है कि आपने ऑब्जेक्टिव में 4 आंसर है, आपने फटाफट से क्लिक किया अपने माइंड में और आपने आंसर बता दिया, ये है इसका तरीका। लेकिन जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा मेरे पास, तो अगर मुझे डायग्राम को यूज करना है, तो आई नीड टू मेक अ डायग्राम लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से।
राइट बेटा. नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 is what? Find the value of x for which these 3 points are collinear. We need to prove points are collinear beta. To prove collinearity तीनों का beta. स्लोप इक्वल होना चाहिए. Very good. So will you be able to all solve these question number 8 beta? Yes, sir. I'll give you the hint beta. We have 3 points A, B, C. We need to find slope 1, then we need to find slope 2, right? And then we need to find slope 3. Clear? तो अगर मुझे कोलिनियरिटी प्रूव करनी है, कोलिनियरिटी चेक करनी है, तो क्या कर सकता हूं बेटा? M1 इक्वल टू M2 और M2 इक्वल टू M3 और M1 equal to M3, whichever condition you can apply, right, and get the value of x. So this तो question डायरेक्टली जीरो के इक्वल भी रख सकते हैं हम. किस बेसिस पे बेटा? सर स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो जीरो होता है ना. स्ट्रेट लाइन का स्लोप जीरो होता है when बेटा? When it is parallel to x axis और parallel to सर y ये axis. तीनों कोलिनियर है तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो स्ट्रेट लाइन है, दोनों का जीरो नहीं होएगा. फिर से कहूंगा बेटा, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच में सूट कर रहा है. दिस इज नॉट सूटेड इन द सब्जेक्टिव. सर वैसे राइट है ना अगर ऑब्जेक्टिव हाँ में. करेक्ट है, आप से करते हो तो कोई गप्पू नहीं है. क्योंकि ना देखो, मुझे अगर इस तरह की अगर आपको ये लगाना है तो मैं एज ए, अगर मुझे क्वेश्चन पूरा चाहिए, फिर इधर दे हैव टू टेल मी दैट दिस लाइन ज्वाइनिंग दिस लाइन इज समवेयर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्योंकि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइन होता है. ठीक है बेटा? राइट बेटा? ओके सर. Okay. Now, question number 9. Without using the distance formula, show that these points are the vertices of parallelogram. क्या करोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में what we need to do? We have 4 points of a parallelogram or quadrilateral, you can say A, B, C, D. Right? Parallelogram क्या होता है बेटा? Opposite sides are parallel. तो अगर सपोज दिस इज M1, दिस इज M2, इसका स्लोप M3 एंड दिस इज स्लोप नंबर 4. सो व्हाट वी नीड टू प्रूव, M1 इज पैरेलल टू M3 एंड M2 इज पैरेलल टू, सॉरी पैरेलल लिख दिया बेटा, इक्वल बेटा. M1 इज इक्वल टू M3, M2 इज इक्वल टू M4. दिस यू हैव टू चेक इन क्वेश्चन नंबर 9. Right? So this is again your homework beta. You have to try yourself. Now come to question number 10. Find the angle between x-axis and the line joining these 2 points. Try karo beta. Question number 10 and give me the input beta. What we need to do in question number 10. Anyone who has tried this question? This is my x-axis, right? x-axis है और कोई एक लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है. पॉइंट है 3 minus 1 and 4 minus 2. Suppose somewhere line is ऐसे है कुछ, ये x-axis और एक लाइन ये है, इसके बीच का एंगल निकालना. क्या करोगे बेटा? देखो वी हैव दिस, ठीक है, एंड वी नो दैट m इक्वल टू क्या होता है बेटा? tan थीटा. और इस साइड जो स्लोप निकालोगे आप, वो निकालोगे 2 पॉइंट से. तो क्या बेटा पॉइंट बताना क्या था? 4 minus 2 था. दूसरा पॉइंट तो -2 माइनस +1 हो गया एंड 4 minus 3. देखना बेटा ये, एंड इट इज इक्वल टू
tan theta. So this is -1/1 is equal to tan theta. This implies tan theta equal to -1. अब ये कैसे निकालते हैं बेटा? -1 किस पर होगा? थोड़ा सा देखो, रिकॉल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज। तो 135 135 करेक्ट बोला। पहले हम थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड के फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड बेटा? के फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग पहला सेकंड और लेंगे, सेकंड और फोर्थ। करेक्ट बेटा, करेक्ट करेक्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू ये होती है बेटा, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में वी नीड टू फाइंड वैल्यू इन सेकंड क्वाड्रेंट, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट इट फॉर्मूला इज पाई प्लस अल्फा, and for fourth quadrant formula is 2 pi minus alpha, right? All four. Now how to find beta? We know the value of 1 किस पे होती है tan theta की? 45 पे। So for this quadrant it is pi by 4 beta, right? अब लेकिन क्योंकि माइनस में है तो माइनस में मेरे दो आंसर है, 1 and this is 2, because tan is negative in second and fourth quadrant। तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है तो दिस इज पाई माइनस पाई बाई 4, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना है इट शुड बी 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो मेरे आंसर क्या हुआ बेटे? थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड और क्या हो सकता है बेटा? 7 पाई बाई 4। दो वैल्यूज, बट एक ही आंसर होगा। देखो क्या आंसर है, 135। तो इसको 135 डिग्री बोलते हैं बेटा, और रेडियन में 3 पाई बाई 4। Is this clear बेटा all of you बेटा? ये नोट कर लो बेटा, ये 12th तक बहुत काम आता है। मैक्सिमम बच्चों को 12th में भी वैल्यू निकालनी नहीं आती, ये मैंने आपको बता दिया। एक बहुत बड़ा सर ग्राफ तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जहाँ थीटा है, तो ये 7 पाई बाय 4 नहीं होगा क्या चीज? तो बेटा मैंने तो स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लिया ना भाई, ये लाइन जरूर थोड़ी यही हो। मेरा डायग्राम गलत बनाया ना बेटा, अगर प्रॉपर बनाओगे तो डायग्राम ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो बेटा? देखो सर मैंने पॉइंट जो गिवन है उनके एक अकॉर्डिंग बनाया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए। तो देखो आंसर क्या होगा। लेकिन बेटा आप जो बता रहे हो ना फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो मैं बताता हूँ, आप इसको इस तरीके से ले रहे हो, आप ये ले रहे हो, जबकि स्लोप ये होता है बेटा। मुझे तो ये निकालना है ना, जैसा भी हमने 7th 8th क्वेश्चन में किसी में किया था। मुझे तो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस का पता है मुझे, बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में यस पाई प्लस अल्फा। कनक ये क्लियर हुआ बेटा? आपका डाउट था ना कनक, आपका था ना बेटा? यस सर हो गया। अब क्लियर हो गया ना? देखो वो एंगल ऐसे बोल रहा था उस समय, लेकिन जो स्लोप होता है वो तो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है ना। तो आंसर मेरे ख्याल से 135 होगा। अगर एमसीक्यू में आपका आंसर 7 पाई बाय 4 लिखा है, वी आर नॉट सपोज टू से टेक दिस आंसर बेटा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर होगा, ये नहीं है बेटा मेरा। दिस इज द आंसर ऑन। ठीक है, चलो अगला देखो बेटा, चेक करो बेटा एक बार 12 13 क्वेश्चन ऑल्सो। 12 13 14 एक बार आप खुद ट्राई करो बेटा, एक बार 12 13 14 ऑल ऑफ यू बेटा ट्राई। 11 बताना है, 11 बता दूंगा सर। अच्छा 11 छूट गया, सॉरी। हाँ 11 पे इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले बेटा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन 11। हाँ बेटा सर समझ आस्किंग। हाँ जी बेटा। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा की जगह माइनस थीटा भी कर सकते हैं ना, मतलब माइनस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यस सर। मैंने पता क्यों बताया ये वाला माइनस, ठीक है वो आपको वाला, लेकिन वो भी एक अल्टरनेट आंसर है। आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू इन फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस अल्फा भी हो सकता है। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक रोटेशन 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में, तो अकॉर्डिंग टू 0 to 2 पाई इफ यू आर फाइंडिंग बेटा, देन यू हैव टू अप्लाई दिस वन बेटा। ठीक है, और जब आपको वो बोल रहे हैं Yes, sir. कि किसी भी जगह पे कैसी भी वैल्यू निकालो, तब आप माइनस अल्फा भी ले सकते हो। ठीक है, आपने बताया मुझे, किससे बताया आपने? Yes, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले केस में बताया है। कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट दिस डायरेक्शन लेते हैं और इन दिस डायरेक्शन, बट दिस टॉपिक इज नॉट इन सिलेबस दिस ईयर, तो हम सीबीएसई में तो नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक को,
ठीक है, ओके राइट बेटा। चलो 11th क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, ऑल ऑफ यू बेटा, प्लीज ट्राई फर्स्ट 11th क्वेश्चन। टेंजेंट ऑफ द एंगल का मतलब क्या? एक सेकंड, the slope of a line is double of the slope of another line if tangent of the angle between them is 1 by 3। tangent of the tangent of tan theta equal to 1 by 3 है बेटा, इसका मतलब ये है, ठीक है। tangent of the angle between them is 1 by 3, find the slopes of the line। देखो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं, ये दो लाइन हैं, इसके बीच का जो एंगल होता है दिस थीटा, so we have a formula tan theta is equal to mod m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 है फॉर्मूला बेटा। तो tan थीटा की वैल्यू 1 by 3 दी हुई है इज इक्वल टू मॉड्यूलस वन स्लोप इज द डबल ऑफ अनदर वन। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, राइट। तो आप ये सपोज करो, इस क्वेश्चन में लिख लो लेट m1 इज x, तो m2 कितना हो जाएगा बेटा 2x, राइट। सो 2x इससे मैं राइट, so now it is 2x minus x upon 1 plus 2x into x is 2x square, right। Now it is 1 by 3 is equal to modulus x upon 1 plus 2x square। now मुझे मॉड्यूलस साइन हटाना है, तो कोई रॉकेट साइंस लगाना है, मैं सब बताओ। प्लस माइनस प्लस माइनस 1/3। वेरी गुड, this become plus minus 1 by 3 is equal to x upon 1 plus 2x square। now we need to solve two equations with plus sign, and another one is minus 1 by 3 x upon 1 plus 2x square। सॉल्व करो बेटा और x की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, क्योंकि स्लोप पूछा है आपसे, हो सकता है एक से ज्यादा आंसर आ रहे हो, चेक करो और कैलकुलेट करके आंसर मैच करो। किसका रहेगा बेटा, किसी टीचर का ही होगा ना, कोई ढूंढे तो बेटा बोल देना ललित सर ने रख लिया अपने पास, ठीक है। डन सर। Then beta, how many answers we have beta? Anywhere values are rejected or not? एक ही वैल्यू है इसमें, और इसमें से सर किसी में एक आंसर रिजेक्ट हो रहा है बेटा? 8 आंसर्स हैं, अरे चेक करना बेटा, 8 आंसर्स हैं, ओके चेक करो आंसर्स एक बार। यानी कोई रिजेक्ट हुआ ही नहीं इसमें ना। दिस इक्वेशन इज आल्सो सिंपली, ये भी सॉल्व हो रहा है बेटा, ये भी सॉल्व हो रही है, दोनों हो रही है, इसका मतलब सॉल्व, राइट। दोज हु हैव डन 11th बेटा ट्राई 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन ट्राई करो। बहुत सिंपल है 12th भी, स्लोप दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों को इक्वल कर दो तो आपकी इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12,
12 हो गया बेटा, वेरी गुड। ऑनलाइन एनीवन हैज डन क्वेश्चन नंबर 12 बेटा? एनीवन? बेटा देखो Done, ये sir. वाला फॉर्मूला लगाना है, m दे रखा है ऑलरेडी और 2 पॉइंट से स्लोप को इसके इक्वल कर दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्रूफ हो गया। 2 लाइन का ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपके पॉइंट है, पॉइंट क्या है बेटा आपके, x1 y1 और h के, तो ये हो गया आपके पास m इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन x माइनस सॉरी h माइनस x1। इसको क्रॉस कर दो बेटा, प्रूव हो गया, राइट। चलो 13 था ना बेटा, 13 पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, 13 पे भी इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा। दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड इन क्लास 12 आल्सो बेटा, क्लास 12 में मिलेगा बेटा। इनको मार्क कर लो, आप याद करोगे कि ललित सर ने बोला था, मुझे नहीं पता कि 12th में आपको कौन पढ़ाएगा, लेकिन आप याद करोगे कि ललित सर ने बोला था ये 12th में क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक बार देख लो, और इसी से रिलेटेड चीज पूछेंगे 12th में, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 12th में आप क्वेश्चन फटाफट कर दोगे। ट्राई करो बेटा 12th क्वेश्चन। वन हो रहा बेटा, 11 हो गया, 12th हो गया, हाँ जी बेटा। सर कोलिनियर दिखाने के लिए क्या हम कोलिनियर दिखाने के लिए क्या हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 दिखा सकते हैं क्या? वेरी गुड बेटा, वो भी दिखा सकता है, 100% 100% वैलिड। If you have 3 points, you can use area of triangle equal to 0. If you have 3 points for collinearity, you can apply slopes are equal. तो 2 सिचुएशन आपके पास, जिससे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है करो, फटाफट करो, देखो किससे जल्दी होता है। गुड आर्यन। Done, sir. 13 done. Very good. Which method you have applied beta? Slope formula or area वाला? Sir, slope. Slope वाला, okay. स्लोप वाला जल्दी सॉल्व कर रहा है, एरिया वाला। आर्यन यू आर ट्राइंग एरिया फॉर्मूला बेटा? आर्यन, एनीवन इज ट्राइंग एरिया फॉर्मूला बेटा? बस मुझे ये बताओ किससे छोटा है, किससे जल्दी हो रहा है? स्लोप वाला जो छोटा छोटा है ना, स्लोप वाला अप्लाई करो फिर एमसीक्यू। सर स्लोप वाले से होगा जल्दी। क्या बोल रहे आर्यन, कुछ बोला बेटा आपने? यस सर, स्लोप वाले से जल्दी होगा, है ना, हाँ स्लोप वाले से जल्दी होगा, बट हमें अपने अल्टरनेट मेथड आने चाहिए ना। लास्ट वाला देखो बेटा, लास्ट वाले में क्या करना है, 14th क्वेश्चन। Anyone can tell me how many students are attending the class in online beta? Online की कोई attendance 20? 23, including me beta? Sir, excluding you. Okay, 23 online. बेटा आज तो attendance बहुत कम है यार, online 23 and offline। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज की सिंपल दी है बच्चे, क्या बेटा? हाँ तो आपको इस तरीके सॉल्व करना है सो दैट यू कैन गेट दिस रिलेशन। ओके 13 करो ना, 13 13 हो गया बेटा आपको, है ना? ये करके बताऊं, बोला कर बेटा, हेजिटेट मत कर, हेजिटेट करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आप बोलो मुझसे, मेरी ड्यूटी है कि आप कहोगे ना एनसीईआरटी सर पूरी यहाँ सॉल्व करके दो, मुझे देनी पड़ेगी बेटा, बट अगर मैं दूंगा तो आपको आएगा नहीं कुछ, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप भी क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। तो अगर कोई में प्रॉब्लम हो रही है बेटा बोलेगा तभी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दोज हु हैव डन बेटा दे कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 H0 AB 0 के। वी हैव 3 पॉइंट्स H0 AB एंड क्या था दूसरा बेटा? 0 के 0 के 0 के।
and they are saying lie on a line. Lie on a line का मतलब होता है collinear. Lie on a line और collinearity एक ही मतलब होता है. Slope वाला यूज करते हैं बेटा. First we find the slope of these 2 points, which is b by minus 0 upon a minus h is equal to k minus b upon 0 minus a. राइट बेटा. और प्रूव क्या करना है मुझे, ना साइड में लिख लो, a by h h by a by h plus b by k. We have to prove a by h plus b by k equal to 1. ठीक है बेटा. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा. दिस इज माइनस ए बी इज इक्वल टू a minus h into k minus b. So it is minus ab is equal to ak minus ab minus hk and plus hb. ध्यान से देखो, माइनस ए बी एंड माइनस ए बी कैंसिल. हाँ जी. जो बच्चे आए हैं उनको आप दे दो और बाकी जो नहीं है इसमें छोड़ देना, वो फिर रिकॉर्ड ले लो. बस ये 4 बच्चे में दे देता हूँ, आप ले जाओ फिर. सर बी की क्लास टीचर कौन? बी का ऐश्वर्या मैम. बी कैसे है? हाँ बेटा, एक बार काना है और जयंत है, वानी है एंड शिवांश. राइट बेटा. A B C D E F G H I J K जयंत. देखना बेटा, ये आप ही का बेटा. ये पेज संभाल के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई का. काना लेना बेटा. देन शिवांश, शिवांश सिंह देसवाल बेटा. लो बेटा. वानी लो बेटा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. इसको बहुत संभाल के रखना है बेटा. इसकी फोटो स्कैन वगैरह करके अपने मेल आईडी पे भी डाल लो. और हाँ जी बेटा, इसके बाद देखो बेटा. नाउ दिस इज नेगेटिव वैल्यू. दिस कैंसिल. आफ्टर दिस shift this minus hk to the left side. So this is equal to hk is equal to ak plus hb. Now divide both side by hk. So hk divided by hk is 1. This divided by this k cancel. It is a by h plus b by k. Hence proved. डन बेटा. नहीं है, कुछ गलती की आपने ना. ओहो कितना. m1 इज, मेरा भी यही आ रहा है. m2 दोनों को इक्वल कर दो. इसको कितने बेटा, तीनों थोड़ी करने, कोई दो. आपने तीसरा भी कर दिया. आप इन दोनों को लो. ना इन दोनों को लो. ठीक है, इन दोनों से, क्योंकि k और h दोनों होना चाहिए, तभी तो मैं प्रूव कर पाऊंगा जो रिक्वायर्ड है. ठीक है, करो. ठीक है डन बेटा. 14 भी हो गया. वेरी गुड. एनीवन हैज डन 14 फ्रॉम ऑनलाइन बेटा? ऑनलाइन एनीवन हैज डन 14th क्वेश्चन? Yes, sir, I have done. Right, very good. Right. Consider the following. This find the slope of the line AB and using it find the point what will be the population in the year 2010. Okay. खाना कहाँ तक रब कर दूं? यहाँ तक कर दूं? क्वेश्चन नंबर 14. डायग्राम बनाते हैं पहले हम. डन सर. 14 डन. वेरी गुड.
and here we have a line like this. This is the line. Here they are saying A point. Here they are saying B point. Coordinate of A is 1985, 92. 1985, 92. And B के coordinate है 1995, 97. 95, 97. और यहाँ कहीं पे ले लो C point, which is 2010. और यहाँ पे आपसे पॉपुलेशन पूछी है, P अज्यूम कर दिया, राइट? अब इन दोनों का स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दीज टू, क्योंकि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी लगा के और P की वैल्यू निकालना, ठीक है बेटा? 14 is also done. So 10.1 exercise done बेटा, ठीक है? Still if you have any doubt you can ask in next class, ठीक है बेटा? तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी है। और हाँ, एक और चीज बेटा जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वी हैव डन सम फॉर्मूलाज, ठीक है? जो हमने लास्ट क्लास में भी फॉर्मूलाज किए थे, उन फॉर्मूलाज का डेरिवेशन है, वो अंडरस्टैंड करना है आपको। तो दैट इज गिवन इन दी बिफोर 10.1 एक्सरसाइज, थ्योरी पार्ट ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ यू हैव टू रीड एट लीस्ट वन। आप देख के खुद कर लोगे वैसे, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और मैं चाहता हूँ एक बार डायग्राम वगैरह देख लोगे तो आपको लगेगा कि आपको खुद आ गया। तो आप जो उसमें सेलेक्टिव पूछोगे वो डिस्कस कर लेंगे, या सारे कहोगे तो सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज दिस क्लियर बेटा? व्हाट आई हैव गिवन यू होमवर्क, एक्सरसाइज 10.1 वी हैव डन। I am giving you the homework of understanding how and which way we have reached to these formulas of slope, which is given in the theoretical part of exercise 10.1. आपको पेज नंबर 205 to 209 पेज तक रीड करना है एक बार बेटा, 205 to 209। ये इसलिए पढ़वा रहा हूँ बेटा ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए 12th का। 209 पेज नंबर बेटा, these 4 pages carefully and try to understand the concept given in these 4 pages बेटा। then ठीक है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, is this clear? Please reply Yes, sir. Yes, what I sir. have given, यस सर। right बेटा? बस एक बार 205 से 209 पेज ढंग से पढ़ना बेटा, ठीक है? जो हमारे सिलेबस में है, एक बार हम इसको पढ़ लेंगे तो जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे, अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो। अदरवाइज नहीं पूछ नहीं सकते, ऑब्जेक्टिव में डेरिवेशन नहीं पूछेंगे। देखो साइंस के बच्चों के साथ मेरा एक सबसे जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है, आपको खाली सीबीएसई क्लियर नहीं करना, आपको कहीं और भी एग्जाम वगैरह करना है। तो जितने कॉन्सेप्ट आपके संग डिस्कस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, कुछ चीजें आपको खुद पढ़ के प्रैक्टिस करके क्लियर होती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट का मेन रूट है, जो मेन पॉइंट है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। जो आगे 12th में वो कैसे यूज होगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर आपके 12th में लगभग 10 to 20 मार्क्स का बेस है ये चैप्टर, स्ट्रेट लाइन। तो आपको याद होगा मैंने फर्स्ट डे पे ही बोला है, जितने भी इफ एंड बट आते हैं आपके माइंड में, आप साथ के साथ पूछ लो, so that the base of class 12 will be clear at this moment on. ठीक है बेटा? Okay बेटा, I am ending the class now. Online student बेटा, please reply. Yes, sir. Yes sir. Okay. Now you can leave बेटा. I am Thank you, sir. leaving the class. Okay बेटा, bye बेटा.